Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to continue our copy जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे अनिमेश प्रधान सर की कॉपी GS3 की जिनका मार्क्स था 103 एंड उनका AIR 02 था 2023 में. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन टिल क्वेश्चन नंबर 15 एंड from 16 we are going to continue with that. Okay, so the first question of today is why climate change is responsible for crop failure. The agricultural sector itself is partially responsible for extreme weather events. Discuss what strategy has been adopted under National Agricultural Disaster Management Plan to strengthen the resilience of farming community in India. Okay, so basically the question from the climate change and if I have to link with the syllabus, then I can say that the question is from environment section. Okay, let's see. Agriculture sector is the second largest sector for producing methane, and carbon footprint of the sector is high due to water or energy intensive cropping of rice, wheat, sugarcane, etc. So basic overview of agriculture sector and how agriculture sector is linked with the producing methane and carbon footprint. ठीक है, then climate change and crop failure. Let's see. The extreme weather events like जैसे heat waves, cyclones, flood are increased due to climate change. IPCC का जो ये रिपोर्ट है, assessment report of 6, इसमें ये बताया गया है leading to crop failure. And then erratic rainfall leads to drought, leading to low crop production. Like more than 50% of area depended on rainfall. ठीक है, तो ये डेटा है. And then new diseases like जैसे blight and rot as seen in the coffee and cotton. So ये सब new diseases are like becoming prominent. ठीक है, so ये productivity of crops decreases due to increased sea level. For example, jute in West Bengal. So ये हमारा हो गया कुछ climate change का effect है क्रॉप फेलियर पे. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. हाउ लेट्स सी. इंक्रीज ड्रॉट कैसे? ड्यू टू ग्राउंड वाटर depletion, 63% of decrease in a decade due to dependence on water intensive cropping. Carbon emission because of reckless use of pumps irrigation due to electricity subsidies. And methane emission होता है due to water logging. Yes, water logging and animal rearing in the rice production में water logging and animal rearing leads to global warming and heat waves. Soil pollution due to excessive use of pesticides, fertilizers that have the contaminated soil, water, and increased salinity. Floods due to eutrophication of lakes, rivers due to increased agricultural waste being drained. Okay, stubble burning की problem होती है. That's like they're responsible for more than 50% of PM 2.5 concentration in Delhi, leading to air pollution. Okay, next आता है हमारा strategy adopted under National Agriculture Disaster Management. क्या क्या strategies है? Let's see. Sustainable agricultural practices with focus on low emission of greenhouse gas. Then crop diversification to focus on climate friendly crops like millets. Then judicious use of fertilizers to reduce the groundwater and soil contamination. Then practices of waste to wealth, composting, and zero budget natural farming has been outlined in line with National Mission for Sustainable Agriculture. Regulation on water use with drip irrigation, PM प्रधानमंत्री किसान ये कृषि सिंचाई योजना. एंड माइक्रो इरिगेशन, नेचुरल वेज फॉर पेस्ट कंट्रोल, लोकस्ट कंट्रोल एंड विथ बायो पेस्टिसाइड. सो यहाँ पे ये बेसिक सा कंक्लूजन है. हेंस एग्रीकल्चर मस्ट नॉट बी अ
hindrance in achieving, yes, SDG 13 targets of climate change, hence require policy intervention. So if you have watched the earlier videos, ठीक है, तो then you have find that कि सर ने ना बहुत सारी जगह एस टी जी कनेक्ट किया है, वेदर एस टी जी 13, एस टी जी 1 2 3 एंड ऑल. मतलब एस टी जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ गुड कंक्लूजन. इफ़ यू डोंट नो other than other things, then you can just write the SDG. You have to connect the topic with SDG. Okay. Next question of that. Some regions in India, including Delhi, are highly vulnerable to impact of earthquake originating in the Himalayas. So Himalaya, ठीक है. Discuss what institutional measures, ठीक है, have been taken to mitigate earthquake losses in India. Do you think there are a significant gap that still exist? So ये क्वेश्चन है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, ठीक है, अर्थक्वेक पे. तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक का, वो यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर, ठीक है. जैसे अबाउट 59% ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स विथ हज़ार्ड जोन 5, 4 एंड 3, ठीक है, अकाउंटेड फॉर 11%, 18% एंड 30% respectively. So this is something I knew this data, but I don't know this one, ठीक है, I didn't know. So what I'm going to do is, like, I'm going to just note down these data, so it will help us to, like, go one step ahead, ठीक है. ये तो बेसिक पता ही होता है 59%, बट इफ़ यू आर डूइंग दिस वन, देन इट विल हेल्प यू टू get 1 marks extra. Various regions like Delhi are vulnerable to earthquake. यहाँ पे regions भी बताया गया है. These are the regions which are prominent, like which are prone to earthquake, ठीक है. earthquake hazard vulnerability यहाँ पे बता दिया गया. देन इधर आया है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी. अब यहाँ पे है वेरियस रीजन्स लाइक दिल्ली एंड earthquake से है, इसका कारण क्या है. फर्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी. ड्यू टू हिस्टोरिकल डेली रिज अक्रॉस Potwar Plateau, yes, in Delhi, and vulnerability in the disturbance of plate tectonic is higher है. जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है कि this is the Himalayan region, ठीक है, and this is Delhi, and ये पोटवार प्लेट्यू है, ठीक है. तो that's why we can say. Then earthquake swarms as seen traversing from Afghanistan, हिंदू कुश का जो रीजन है, ठीक है, to Delhi, ये भी एक रीजन है, and रामगढ़ and पालगढ़. देन पॉपुलेशन डेंसिटी विद लाइक 4 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पे है, हाई डेंसिटी है, एंड यस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी इज़ हाइयर है यहाँ पे, ठीक है. एंड देन यहाँ पे वायलेशन ऑफ फ्लोर सेफ्टी इंडेक्सेस, उसका भी वायलेशन होता है यूजुअली फ्लोटेड बाय स्काई स्क्रैपर्स इन NCR, गुड़गांव एंड नोएडा, इंक्रीजिंग द ओवरऑल वल्नरेबिलिटी, ठीक है. बिल्डिंग डिज़ाइंस अनसस्टेनेबल होता है, ठीक है. कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड एडजेसेंट प्रॉक्सिमेट बिल्डिंग्स वगैरह जो उनका स्ट्रक्चर है, मेक देम प्रोन टू लार्जर डैमेज. एंड देन सेंसिटिव टेरेन लाइक स्पेशली इन द तराई रीजन मार्किंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम हिमालयाज टू प्लेन. इंस्टीट्यूशनल मेजर टू मिटिगेट अर्थक्वेक लॉस, ठीक है. क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर टू मिटिगेट द अर्थक्वेक. फर्स्ट वन इज नेशनल पॉलिसीज, लाइक जैसे नेशनल retrofitting mission, national building code signify the sustainable measures to control damage. Schemes of like PM 10 point agenda जो है हेल्प कर सकता है in increased community पार्टिसिपेशन लाइक एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़न में. एंड देन बॉडी कैसे हेल्प कर सकती है, लाइक जैसे NDMA की गाइडलाइन, SDMA एंड DDMA एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस एंड NSS एट्सेट्रा इंक्रीजेस द रोबस्टनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सेटअप. टेक्नोलॉजी की बात करा जाए तो लाइक सेज मॉडल एंड क्वैक ऐप एंड सत्कार ऐप इज़ इन उड़ीसा ये यूज़ किया जाता है. दिस इज़ वी कैन से कि ये ऐप भी हम लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी में. इंस्टीट्यूशनल लाइक जैसे सेंडई फ्रेमवर्क एंड ह्यूगो प्रोटोकॉल एंड CDRI. एंड देन प्रेजेंट गैप क्या है, पहला तो है कि लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दूसरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म शॉर्टफॉल है टू चेक द अनसस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड अवेयरनेस टू डील अर्थक्वेक फॉर पब्लिक. टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़न भी है, and lack of fund for build back better. Hence it is not the disaster that kills but the lack of preparedness that
that does. So this is like the fancy lines that you have to write in the conclusion section. So basically ये question था disaster management पे, ठीक है, like the especially the regions of Delhi, but दिल्ली को आप लिखते हुए general features भी लिख सकते हो कि what are the reason, what are the recommendations. Next question है, recently scientists announced a net energy gain in nuclear fusion reactions, which is considered as a major scientific breakthrough for the future of clean energy. What are the advantages of nuclear fusion based power generation? What are the limitations in using it to generate electricity at a commercial scale? So ये this question from the science and tech portion, ठीक है, you can connect with the syllabus of science and tech, ठीक है. So यहाँ पे है nuclear fusion like reactions imitates the environment of sun where atomic particles of hydrogen combines, like जो fusion होता है, to yield energy which is achievable at a very high temperature. And then advantages of nuclear fusion. ओके, तो लेट्स सी सोर्स ऑफ क्लियर एनर्जी, ठीक है, लाइक जैसे विथ लोअर ग्रीन हाउस एमिशन होगा इससे, एंड रिस्क ऑफ माइनिंग एज सीन इन न्यूक्लियर फिजन फॉर यूरेनियम इज रिड्यूस्ड, वेस्ट डिस्पोजल इशू इज नॉट pertinent as opposed to nuclear fission. Technology can be replicated, ठीक है, and does not have resource deficiency implication as seen in the coal, oil and uranium. इधर है हमारा what is this क्वालिटी को लेके है, abundant in क्वांटिटी, ठीक है, वंस स्केलेबल, अगर स्केल करा जा सकता है, देन डिपेंडेंसी ऑन दी अदर सोर्सेज इज़ मिनिमल, ठीक है, वही अगेन जो कोल वगैरह पे डिपेंडेंसी वो कम हो सकती है. एंड लेट्स सी लिमिटेशंस, बट क्या है यहाँ पे लिमिटेशंस है, लाइक लैक ऑफ स्केलेबिलिटी टू रिप्लिकेट द टेक्नोलॉजी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द ग्लोब, हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है होता है, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट की ज़रूरत है, and then scope of industrial accident due to the sensitivity in the technology, cost of investment high है यहाँ पे, and no large scale studies पे नहीं करी जा रही है, ठीक है. and then way forward क्या हो सकता है, like increased international collaboration like similar to ITEM and building of tokamak, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D होना चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम फिजिक्स में. चेक द स्कोप ऑफ कमर्शियल यूजेस ऑफ मिड स्केल लेवल, एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, एंड इंडस्ट्री एकेडमिया जो गैप है वो कम होना चाहिए, ठीक है. दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू, वी कैन राइट फॉर वे फॉरवर्ड एज अ वे फॉरवर्ड, ठीक है. हेंस वाइल IPCC mandates like जो 43% decrease in CO2 by 2030 to meet 1.5 जो डिग्री का जो टारगेट है हमारा, टेक्नोलॉजी लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन सोज द वे. इट मीन्स दैट न्यूक्लियर जो फ्यूजन है विच कैन हेल्प अस टू रिड्यूस आर एमिशन टारगेट्स, जो एमिशन टारगेट्स है उसको अचीव करने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज़ फेयरली सिंपल एंड बेस्ड ऑन दी लाइक इन्वायरमेंट से. इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इन साइंस एंड टेक बेसिकली बिकॉज ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में था. एंड देन द सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज लाइक कीपिंग इन व्यू द रिसेंट अमेंडमेंट, एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 का है, ठीक है, इन टैकलिंग द मीनेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया. सो बेसिकली ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इन जनरल सिक्योरिटी में ये मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टली टॉपिक है, ठीक है. एज पर FATF का एस्टिमेट्स, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट्स फॉर 3 to 5% ऑफ ग्लोबल GDP, ओके, हिंडरिंग द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन बोथ वर्ल्ड एंड इंडिया. सो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करा जाती है, प्लेसमेंट ऑफ ब्लैक मनी इन बैंक्स, एंड देन ये एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, देखो, प्लेसमेंट ऑफ ब्लैक मनी इन बैंक, देन इसका लेयरिंग किया जाता है, देन इसका होता है इसको इंटीग्रेट किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पे परचेज ऑफ रियल इस्टेट. देन इधर आता है हमारा विथ रिसेंट अमेंडमेंट इन प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 का है, ये हमारा है मनी लॉन्ड्रिंग इन इज टैकल्ड बाई, कैसे टैकल किया जा सकता है, मोर
टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी को ज़्यादा पावर दिया जाए, ऐसा कहा बोला जा रहा है। टू सर्च स्कोप एंड सीजर्स ऑफ मनी अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। ये सेक्शन यहाँ पे सेक्शन भी लिखा गया है, सेक्शन 16, 17 एंड 18, ये जो इस एक्ट का, ठीक है। देन यहाँ पे यह है कि अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ये सेक्शन 50 बोलता है। एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्ट्रेंथेंड बाय अमेंडमेंट, सेक्शन 24 बोलता है मैंडेट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एक्यूज्ड, हेंस making it difficult for the criminal to prove innocence. And then emergency information report is not mandated to be made public, okay, public or shown to the accused to reduce the scope of tampering को कम करने के लिए इसको publicly नहीं किया जाना चाहिए. And proceeds of crime that have been used to buy other assets shall be confiscated along with these assets, making a strong deterrence. So apart from the amendment in PMLA, additional mechanism must be strengthened to reduce the menace of money laundering. ठीक है, कैसे? Let's see. Financial Intelligence Unit and Economic Intelligence Unit for overall monitoring of economic transactions. Institutional mechanism like FICN and coordination group to check काउंटरफिटिंग जो इनेबल्ड मनी लॉन्ड्रिंग है उसको, उसके लिए. एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CFT, लाइक कॉम्बैटिंग फॉर फाइनेंशियल ऑफ ये टेररिज्म, एंड TFFC, टेरर फाइनेंसिंग एंड फेक करेंसी टू बी स्ट्रेंथेंड. इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस लाइक जैसे FATF के साथ कोलेबोरेशन, बिम्स्टेक सब ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एशिया पैसिफिक ग्रुप एट्सेट्रा. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक जैसे AI एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लॉकचेन, ये यूज़ किया जा सकता है. हाईलाइट दी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स, ओके. क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग टू बी tackled by global collaborative efforts pioneered by World Bank and IMF. Then conclusion, hence to achieve a robust stable economic regime, policy and institutional setup must be strengthened to tackle money laundering. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल सा क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग पे जो बेसिक है. इससे ये जो इसके कॉजेज़ क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वी जनरली प्रिपेयर फॉर दैट, ओके. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज लाइक डिस्कस द सिक्योरिटी थ्रेट प्रेजेंट इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, विच हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन इंडियाज मैरीटाइम बॉर्डर्स इंटरेस्ट. सजेस्ट अ रोबस्ट स्ट्रेटजी टू डील विद दीज थ्रेट्स. So with 80% of trade and 90% of crude being traversed through Indian Ocean regions, the security of region is of immense importance for India. Security threat present in IOR, Indian Ocean region बात करा जाए तो ये हमारा है पायरेसी, ए वल्नरेबल कोस्ट एंड इधर है ट्रबल साउथ चाइना सी, ये हमारा चोक पॉइंट है. ठीक है, वल्नरेबिलिटी ऑफ कोस्ट की बात करते हैं तो ये 7,500 किलोमीटर प्लस का ये हमारा जो कोस्ट लाइन है. ठीक है, वल्नरेबल एंड एक्सटेंडेड स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एज सीन इन 26/11 अटैक. तो यू कैन सी द लाइक द डायग्राम की, यहाँ पे डायग्राम बनाया गया कि इंडियन ओशन रीजन को प्रॉपर बनाया गया है. यहाँ पे देखो ये इंडिया का है, इंडिया का मैप, एंड देन इधर पायरेसी, ये पायरेटेड रीजन है. ठीक है, ये चोक पॉइंट्स हैं, ये जो मलक्का स्ट्रेट, एंड ये ट्रबल्ड साउथ चाइना सी का जो रीजन है कंट्रोवर्शियल. ठीक है, ये हमेशा उसमें रहता है, ये इंडियन रीजन है. तो यू कैन मेक द yes, you can draw the diagrams, like it will help us to like get good marks. So piracy की बात करा जाए तो infamous Gulf of Aden and Horn of Africa is prone to the piracy and similar attacks. choke point की बात करें, state of Malacca, Park Strait can hinder the smooth logistics and are prone to criminal activities. इस लैंड की बात करें जैसे अंडमान निकोबार, अंडमान एंड लक्षद्वीप जो है are prone to drug and arms smuggling, are proximity to China's military base of साउथ चाइना सी का. जो क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन इंडियन ओशन लाइक जैसे साइक्लोन, सुनामी एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस वल्नरेबल है. मल्टीपल एजेंसीज लाइक लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड ये नॉन स्टैंडर्ड्स SOPs मेक द एफिकेसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन नेवीज, नेशनल इंडियन कोस्ट गार्ड फ्यूटाइल. सो यहाँ पे है स्ट्रेटजी टू डील विद द सिक्योरिटी थ्रेट्स आर एट इंडियन ओशन रीजन. क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, लेट्स सी. इंडियन कोस्ट सिक्योरिटी स्कीम्स को प्रमोट किया जाना चाहिए. एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जैसे इंडियन ओशन गार्ड,
सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी एंड स्टेट पॉलिसी जो है इनका मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए. एंड INCOIS like INCOIS led to coastal vulnerability mapping to check the लाइक जो डैमेज है डेंजर है उसको चेक करने के लिए. एंड देन पॉलिसीज लाइक जैसे नेशनल कमिटी एंड स्ट्रेटजी फॉर मैरीटाइम कोस्ट सिक्योरिटी. एंड देन इधर हमारा इंडियन ओशन रीजन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स एट जैसे गुड़गांव में है, गुरुग्राम फॉर मॉनिटरिंग एंड सस्पिशंस. एंड नेवल एक्सरसाइजेस लाइक मिलन एंड समुद्र शक्ति, मलाबार, इंटरनेशनल कोलेब्रेशंस थ्रू बिम्स्टेक एंड IOR ग्रुपिंग एट्सेट्रा. अरेंजमेंट देखा जाती है लाइक ये दुखम पोर्ट एंड ओमान हैज़ इंडियन बेस and India US Indo-US military regiment and Indo-France collaboration in Indian Ocean region. Community participation like fishermen led सागर सुरक्षा दल. ठीक है. Hence India's maritime security is of paramount importance for sustaining socio-political stability. ठीक है. तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया इंडियन ओशन रीजन का. ठीक है. तो आई होप गाइस की आई थिंक ये जो आज हमने क्वेश्चन देखे दे आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, लेट मी जस्ट टेल यू द फर्दर प्लान दैट आई हैव मेड फॉर to read the next copy. So I have till now I have completed like GS3 में I have completed Suti Sharma ma'am की copy and I am talking about GS3 and enemies प्रधान सर की कॉपी. ठीक है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड GS4 की कॉपी. ठीक है. ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड श्रुति शर्मा मैम की कॉपी एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू रीड आदित्य श्रीवास्तव. ठीक है. जिनका AIR 1 था अभी लेटेस्ट जो 2023 में. एंड सर का मार्क्स था 143 विच इज़ वेरी लाइक विच इज़ एक्सेप्शनल मार्क्स. ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड GS4 की कॉपी देन मूव टू GS2 एंड GS1. ठीक है. सो ऐसे हम थोड़ा सा चेंज लाना जरूरी है बिकॉज आई हैव रेड 2 कॉपीज साइमल्टेनियसली फॉर GS3 पेपर्स एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट अ चेंज. ठीक है. सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज. थैंक यू.